Hello students, welcome back to our classes and wish you a very happy new year. Today we are going to start one more new chapter, that is lesson number 9, agriculture in India. So we are just going to learn about the landforms and what about the type of government that exists in our country now, what type of agriculture is done in our country. Let us know more about this. So what we are going to learn about is agriculture, cropping seasons in India, how many types of cropping seasons are there, and what are the different types of crops that are grown in our country, what is horticulture, what is livestock rearing, and what is fishing, what all these are. So we are just going to learn about all these in detail. So children, let us see the first step that is given over here. What is the first thing that comes to your mind when you think about farming? So farming के बारे में जब आप सोचते हो तो सबसे सबसे पहले जैसा फार्मिंग ये नाम सुनते सुनते आपके माइंड में क्या आता है? यू जस्ट इमेजिन दैट एंड राइट हियर. सो मतलब फार्मिंग के बारे में सोचते सोचते आपको क्या याद आता है? फार्मर, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हमको याद आते हैं. So what is the first thing that comes to your mind when you think about farming? What is मतलब आपने फार्मिंग ये वर्ड सुनते सुनते आपको कुछ ना कुछ हाँ या रिलेटेड व्हाट इज टू विच फार्मिंग इज रिलेटेड इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ याद आता होगा. कोई सा भी हो वो इधर लिख लीजिए आप. ओके, सो चिल्ड्रन लेट अस स्टार्ट विथ आवर चैप्टर. सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर? Agriculture in India. So first of all we should know what is agriculture. Agriculture क्या होता है? Agriculture और farming, farming हो या agriculture हो बात एक ही है. Agriculture और farming means the cultivation of land to produce क्रॉप्स, मतलब लैंड को कल्टीवेट करना, लैंड को कल्टीवेट करके उसी में हमको कुछ क्रॉप्स ग्रो करने को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. What children, what do you mean by agriculture? It means the cultivation of land. Land को cultivate करना ताकि उसमें कुछ crops हम produce कर सके. It also includes, so agriculture means हमेशा आप only growing of crops, land पे crops, simply crops means आप क्या सोचेंगे? Whatever the food items that we are getting means mainly fruits, vegetables, whole whatever the grains that we use that we eat, जैसा कि wheat है, राइस है, मेज है, बार बार कॉर्न है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये मत सोचना. ये क्रॉप्स में भी बहुत तरह की है और एग्रीकल्चर के अलावा कई बार इसमें और क्या इंक्लूड होते हैं, मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली मेनली फूड आइटम्स के अलावा और भी क्या हम ग्रो कराते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर में ये भी इंक्लूड होते हैं. व्हाट दे आर? हॉर्टिकल्चर. वी विल कम टू नो अबाउट दिस later on. Okay, so horticulture, livestock rearing. Livestock rearing, rearing means bringing and bringing up of upbringing of cattle है ना. एंड फिशिंग, फिशिंग को भी तरह तरह की फ़िश को ब्रीडिंग करा के उसकी बहुत सारे लार्ज स्केल में उनको प्रोड्यूस कराना. सो ऑल दिस कम अंडर दिस एग्रीकल्चर इटसेल्फ है ना. हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज़ लाइव स्टॉक रेयरिंग, व्हाट इज़ फिशिंग, विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस लेटर ऑन इन द सेम चैप्टर itself. Okay children, so this is what all about agriculture. So along with growing of crops, horticulture, livestock rearing and fishing also includes agriculture. It provides food for millions of people and raw materials for many industries. So agriculture की वजह से ही इतना सारे population को अपनी country में सबके पास daily खाने की food पहुंच रही है. Why? Because one or other farmer is growing crops. That's why we are getting food today. आपके पास हो पैसा फिर भी ग्रो कराने वाला नहीं हो तो कहाँ से आएंगे हमको वो चीज़, है ना. सो एग्रीकल्चर में मेनली फूड आइटम्स डेली अपनी सर्वाइविंग के लिए व्हाट वी यूज टू ईट, एंड अदर देन दिस सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ऑल्सो देयर. जैसा कि नॉट ओनली क्रॉप्स, आपको क्लॉथ्स कहाँ से आएंगे, फाइबर्स कहाँ से आते हैं. यू कुड हैव लर्नड इन योर साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क, ये सब कहाँ से आते हैं आपको. जूट,
जूट की भी कपड़े बन रहे हैं आजकल, और है ना, तो ये कॉटन भी कॉटन प्लांट से, सो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। एंड अदर देन दिस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ डेली रूटीन में अपन को जितने सारी चीज़ें चाहिए वो सब भी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। तो कहाँ से, इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, मतलब मेन जो मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, अपनी एग्रीकल्चर के थ्रू ही। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री through which we can produce so many types of things which we need in our daily basic activities. Okay children, just let us move ahead into the chapter. The second paragraph, about 70% of the Indian population depends upon agriculture for a living. What do you mean by a living? Living means in order to live we used to do some or other work, है ना, we need to earn money. मनी तो चाहिए हमको डेली, हमको सर्वाइव करने के लिए. in each and every family somebody used to work. Why they used to work? Why they used to do some or other work? Because through that work they can earn something, and using that money we can survive for our basic needs. डेली इंसान के लिए कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, है ना, क्लॉथिंग हो, हाउसिंग हो, फूड हो, ये सब बहुत बेसिक नीड्स है. तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अपन को अर्न करना, फॉर आर लिविंग, अपनी लिविंग को सर्वाइव करने के लिए वी मस्ट एंड शुड अर्न. तो अर्न करने के लिए अबाउट 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 100 में से 70% ऑफ अपनी इंडियन पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है बेटा? डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. बहुत सारे, मतलब 30% ठीक है, दे यूज टू वर्क इन अदर ऑफिसेस और समवेयर एंड इन इंडस्ट्रीज, बट मोस्ट ऑफ द people are engaged, most of the people are engaged in agriculture for their living. A variety of crops are produced in India, not only a single type of crop, so many varieties of crops are grown in our country. This is because, why ओनली एक ही तरह का क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए कुछ स्पेशल रीज़न होगा. दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट. अपनी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी, फेवरेबल मीन्स इट फेवर्स फॉर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अपनी जो क्लाइमेट है ना बहुत अच्छा है, जैसा कि ना कि पूरा साल हमको विंटर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स, यू नो अबाउट दिस. ऐसा नहीं हमेशा स्नोई होता रहे, तो कुछ टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए वो प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाते हैं. बट द क्लाइमेट दैट एग्जिस्ट in our country, we have already discussed about the climate of our country. We have discussed in detail about the climate of our country in our previous chapter na. So अपनी country की जो favorable climate means it gives a lot of favorable means वो बहुत सारे तरह तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस कराने के लिए वो हमको बहुत सारी चीज़ें एनहांस करते हैं, मीन्स बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे अपने इंडियन क्लाइमेट. दैट्स वाई इंडिया हैज़ ए वेरी फेवरेबल क्लाइमेट. फर्स्ट पॉइंट. देन अदर देन दिस, fertile soil, the soil that is present in our country is very fertile, बहुत अच्छे, because northern plains में जो भी soil है कितना fertile है. so the people who are living over there, their main occupation is also agriculture, so they can produce so many varieties of crops. We have discussed that too in our the chapter of northern plains, isn't it? And adequate rainfall, what it is children? See the word adequate. Adequate means जितना चाहिए उतना, मतलब more than enough. बहुत अच्छे रेनफॉल, मतलब जितना चाहिए उतना रेनफॉल भी होता है अपनी कंट्री में. सो दिस आर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू एग्रीकल्चर. सो अपन को एक जगह वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अगर प्रोड्यूस कराना चाहते हो तो व्हाट वी नीड चिल्ड्रन? फेवरेबल क्लाइमेट. बहुत अच्छा वो क्लाइमेट फेवरेबल होनी है. जैसा कई बार होता है कुछ क्रॉप्स के लिए समर क्लाइमेट चाहिए और कुछ क्रॉप्स स्पेशली विंटर में ही आते हैं. जैसा फ्रूट्स भी आप ऑब्जर्व करना, समर में व्हाट विल गेट वाटरमेलन एंड मैंगो, एंड इन विंटर वी गेट सो मेनी वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स. सो ऑल थ्रू द ईयर वी आर गेटिंग सो मेनी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स विच आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. इन द सेम वे बहुत तरह तरह की क्रॉप्स के लिए तरह तरह की जो अपनी क्लाइमेट जो है ना बहुत फेवरेबल है. द सेकेंड थिंग, fertile soil, very good and fertile soil is there. and the third one, adequate, जितना चाहिए हमको रेनफॉल वो रेनफॉल भी हमें मिल रही है. in areas where there is little rainfall, but we have already discussed about this also, in some areas there may not be adequate rainfall. जहाँ ज़्यादा चाहिए उधर उतना नहीं होता है, तो उधर क्या करते हैं? irrigation facilities are provided.
सो वी हैव ऑलरेडी केम टू नो व्हाट इज इरिगेशन। आपको ये भी पता है इरिगेशन क्या है, वाटर सप्लाई करना, किसके लिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स में वाटर सप्लाई करने की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं अपने इधर। सो जहाँ पे रेनफॉल की कमी है उधर अपन बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप किया, तो उस एरिया में जो भी क्रॉप्स अपन ग्रो करा सकते हैं वो उधर कर सकते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ जस्ट टर्न योर पेज। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। सो जैसा अपने इंडिया में तरह तरह की सीजन्स है, ऐसा क्रॉपिंग का भी सीजन्स है। लेट अस सी व्हाट दे आर। देयर आर 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मेनली 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स आर देयर। व्हाट दे आर? खरीफ एंड राबी सीजन्स। क्या क्या है बेटा? एक तो खरीफ सीजन है, एक राबी सीजन है। सो लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन द खरीफ एंड राबी। एक खरीफ सीजन की और राबी सीजन की डिफरेंशिएशन जानेंगे अभी हम। सी द फर्स्ट पॉइंट, द क्रॉप्स सोन इन द समर्स एंड हार्वेस्टेड इन विंटर्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सो जो भी क्रॉप सोन मतलब सीड्स को, जब सीड्स को कोई भी प्लांट ग्रो होना हो तो उसके लिए सीड्स अपन जमीन में लगाते हैं ना। सो सोइंग ऑफ अ सीड, इसी को हम सोन, द क्रॉप सोन इन द समर में जो क्रॉप्स को सो करते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन विंटर्स, विंटर्स में उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू हार्वेस्ट देम इन विंटर। मतलब समर में आपने सीड्स लगाया और आपको वो क्रॉप कब तक मिलेगी? विंटर में। हार्वेस्टिंग मीन्स आफ्टर द क्रॉप हैज ग्रोन इनटू अ गुड कंडीशन। जब भी वो क्रॉप बिल्कुल गुड कंडीशन में ग्रोन अप हो गया तो उसको हम कट करेंगे। उसको कट करके उसको आगे हमारी यूज़ के लिए उसको स्टॉक में रखेंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। सो द क्रॉप सोन इन समर में जो सीड्स सो किया, एंड हार्वेस्टेड इन विंटर्स, वो क्रॉप आपको कब मिलेगी? सीड्स डाला और तुरंत ही आपको मिल जाएंगे क्या? हर क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए द नीड सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम चाहिए होता है। देन दे विल गेट into a good condition so that we can use the material that we get from the crop. So वो crop से जो भी material हमने produce किया उसको use करना हो तो उसको अच्छी time और अच्छी favorable conditions देना पड़ता है। So खरीफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं हम? जिस क्रॉप्स को आपने समर में सो किया एंड विंटर्स में उसको हार्वेस्टिंग कर रहे हो, दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर राबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप सोन इन द विंटर्स। देखा, अभी विंटर्स में एक क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद कुछ एक क्रॉप्स को विंटर्स में सो करते हैं, मतलब विंटर्स में उनकी सीड्स डालेंगे, विच आर सोन इन द विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन समर्स। एंड उसकी जो कटिंग कब होती है? समर्स में। मीन्स दे विल ग्रो अप इन समर, मतलब विंटर में आपने सीड डाला और समर में वो क्रॉप अपन को मिलेगी। These are called rabi crops. So खरीफ क्रॉप्स को हम समर में सो करेंगे एंड विंटर में हम हार्वेस्टिंग करेंगे, और राबी क्रॉप्स को विंटर्स में सो करेंगे एंड इन समर्स वी विल गेट द क्रॉप। Kharif crops require a lot of water and need hot weather to grow. So kharif crops के लिए क्या चाहिए? It requires, they need a lot of water. उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, and need hot weather to grow. और वो grow होने के लिए favorable condition क्या है? They need hot weather. उसके लिए hot weather चाहिए. So hot weather चाहिए. That's why we are sowing these seeds in summer. And in rabi crops require a cool climate at the time of sowing and a warm climate during germination and harvesting. So देखिए, राबी क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए? दे रिक्वायर ए कूल क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ सोइंग। मतलब जब भी आप बीज डालते हो, जब भी अपन सीड्स डालते हैं, सीड्स को सो करते हैं, तो तब हमको कौन सी क्लाइमेट चाहिए? कूल क्लाइमेट। बट इन समर्स कैन वी गेट द कूल क्लाइमेट? नो, समर्स में क्लाइमेट कूल नहीं होता है। दैट्स वाई राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स। इसीलिए इनको सोइंग कब करते हैं? विंटर्स में। राबी क्रॉप्स रिक्वायर अ कूल क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ सोइंग। मतलब जब भी आप कोई भी प्लांट उगाने के लिए, कोई भी क्रॉप उगाने के लिए बीज सीड्स जो सो करते हो वो विंटर में करना चाहिए। एंड अ वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग जर्मिनेशन मीन्स जब वो सीड से आपको वो प्लांट ग्रो होने की जो स्टेज होता है, सीड होता है, फिर सीड के अंदर से छोटा सा बेबी प्लांट आएगा, तो ये जो प्रोसेस होने के बीच की जो टाइम है इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। सो
रबी के लिए हमको क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए सोइंग की टाइम में, एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए कब, जर्मिनेशन की टाइम एंड इवन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। जैसा विंटर्स में नवंबर दिसंबर जनवरी पीक विंटर्स होते हैं हर स्टेट में मोस्टली, तो उस टाइम वो क्रॉप्स को पर्टिकुलरली सो करेंगे, एंड जर्मिनेशन आफ्टर 1 मंथ वो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा धीरे धीरे। फरवरी मार्च में भी थोड़ा हॉट क्लाइमेट आता है, हल्का हॉट आता है, तो उस टाइम उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस होगा, एंड उनकी हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ क्रॉप्स कब होगा, इन मई जून दे नीड। सो इसीलिए राबी सीजन की जो क्रॉप्स में, राबी में जो क्रॉप्स ग्रो कराएंगे उनके लिए द नीड अ कूल क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड अ वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, मतलब सीड से बेबी प्लांट आने तक जो प्रोसेस है उस टाइम पे दे नीड अ वार्म क्लाइमेट एंड इवन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टू। नाउ खरीफ सीजन की मेजर क्रॉप्स क्या है, द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर राइस, मिलेट्स, शुगर केन, मेज, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड जूट। ये सब राइस है, मिलेट्स है, मेज है, ये सब क्या है, ग्रेन्स जो हम खाते हैं। शुगर केन पता है आपको, वेराइटी ऑफ पल्सेस यू नो, ग्राउंडनट्स भी पता है, कॉटन एंड जूट प्लांटिंग भी इसी टाइम पे होती है। कब होती है, खरीफ सीजन में। नाउ राबी सीजन में क्या क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर व्हीट, गेहूँ, मस्टर्ड, राई, ऑयल सीड्स, तरह तरह का ऑयल की जो सीड्स है, बार्ली एंड ग्राम, ये सब यूज़ करते, ये सब ग्रो कराते हैं रबी सीजन में। सो चिल्ड्रन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस, फर्स्ट पॉइंट, in kharif season crops are sown in seeds are sown in summer and harvested in winter, and in rabi season crops are sown in winters and harvested in summers, just quite opposite। and kharif के लिए lot of water चाहिए and hot climate चाहिए, and रबी crops में they require a cool climate at the time of sowing and warm climate during germination and also harvesting। so what are the major crops here, rice, millet, sugarcane, maize, pulses, groundnut, cotton and jute। and in rabi season the main crops that are grown are wheat, mustard, oil seeds, barley and gram। so these are the three main differences between kharif and rabi seasons। so children, go through the video carefully and try to read the chapter and understand the concept। thank you।